Hello everyone. So today we have our first chapter, which is what is psychology, and what we are going to read in this chapter is we will discuss that understand the nature and role of psychology in understanding mind and behavior. कि हम किस तरीके से जो इसका इस सब्जेक्ट का रोल होता है किसी को भी समझने में और किसी के माइंड को समझने में या फिर उसके बिहेवियर को समझने में. State the growth of the discipline. Know the different field of psychology, its relation with other disciplines and professions. Obviously कि ये किस तरीके से और सब्जेक्ट से और प्रोफेशन से रिलेटेड है. And after that, appreciate the value of it in our daily life, which help us to understand yourself and others better. So it will add a value on you. And let's get started with this. So the content which we are going to discuss are the very first, which is introduction, in which we will discuss its disciplines, its natural science, its social science. Then after that, we will discuss understanding mind and behavior. Then after that, we will discuss popular notions about other disciplines of psychology. And then after that, it's evolution. Then after that, some interesting landmark in its evolution in modern psychology. After that, its development in India, uski branches and themes, applications, and a lot more. So there is a quote written by Norman Cousins, which is the growth of human mind is still high adventure. In many ways, the highest adventure on earth. So, ह्यूमन माइंड को रीड करना एक बहुत ही एडवेंचरस काम है. एंड इट इज़ मीन्स it can be, it is an highest adventure in the earth. So it is given by Norman. So let's get started with this adventure. So first of all, we have given introduction. So you were perhaps asked by your teacher in the first class why you opt for psychology over other subjects. So this is the very first question which teachers ask कि क्यों तुमने ये सब्जेक्ट लिया. So what do you hope to learn? If you were asked this question, what was your response? एंड जब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स था. जनरली द रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज विथ विच surface in class 2 this question are truly bewildering. Most students give the inane responses like they want to know what other are thinking, but then one also comes across such responses as knowing oneself, knowing others, or more specific responses like knowing why people dream, why the way they out of their ways to help others, beat each other up. All ancient tradition have engaged themselves with the questions about human nature. So the Indian philosophical tradition in a particular deal with questions relating to why people behave in the manner in which they do. So as human is very curious, they want to know कि क्यों इस तरीके से जो है लोग behave कर रहे हैं. Why are people generally unhappy? कि लोग क्यों, why they are not happy with their life? What change should they bring about in themselves if they desire happiness in their lives? And what kind of changes they should do. So like all knowledge, psychological knowledge too is intended to contribute to human well-being. So जैसे हमने और भी बहुत सारी हमारे पास नॉलेजेस होती हैं. जैसे हमारे पास if we have some technical knowledge, then that's for making the human's life easy. So in that way only the psychological knowledge is also is an intent to contribute to human well-being. So if the world is full of misery, it is largely due to humans themselves. तो अगर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मिजरेबल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड में, तो उसको क्रिएट करने वाला भी खुद ह्यूमन है. Perhaps you have asked why 9 is to 11 or war in Iraq happen. Why innocent people in Delhi, Mumbai, Srinagar or in Northeast have faced bombs एंड बुलेट्स. क्यों ऐसा हुआ कि जो इतने सारे इनोसेंट लोग थे उन्होंने इतनी सारी जगहों पे एंड ओवर द वर्ल्ड वाइड उन्होंने इतने ज़्यादा
इतनी ज़्यादा उन्होंने मिज़री सहन की, उन्होंने वायलेंस देखा। So, psychologists ask what is the experience of young man which turn them into terrorist seeking revenge. तो हमारी स्टडी में हम ये भी इंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से, मतलब ऐसा क्या एक्सपीरियंस होगा कि एक इंसान जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था वो एक टेररिस्ट में चेंज हो गया। बट देयर इज़ अनदर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, और फिर वहीं पे एक ह्यूमन नेचर की दूसरी साइड होती है कि एक वी हैव सो मैनी soldiers dying for their country, for their people. So, what made them to do that? Then we have Major HPS Ahluwalia paralyzed waist down because of an injury. एक मेजर है HPS आहलूवालिया, तो वो पैरालाइज हो गए थे एक इंजरी में, जो उनको वॉर के टाइम पे, जब पाकिस्तान से वॉर हुआ था उस टाइम पे हुई थी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लाइंब की वर्ल्ड की लार्जेस्ट पीक, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। व्हाट मूव हिम टू क्लाइंब सच हाइट? उनको ऐसी क्या चीज़ थी जिन्होंने उनको उतनी हाइट पे, जहाँ पे नॉर्मल लोग भी मतलब बहुत कम रेयरली जाते हैं, उन पे चढ़वा दिया। So these are not only questions about human nature which psychology addresses as a human science. You will be surprised to learn that modern psychology also deals with somewhat nebulous micro level phenomenon like consciousness, focusing attention in the face of noise, support trying to burn down a shopping complex after their team had scored victory in a football गेम ओवर इट्स अ ट्रेडिशनल राइवल। तो मतलब यही है कि हम मॉडर्न साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम बहुत सारे ऐसे माइक्रो फिनोमिनन्स देखते हैं, जैसे कि कॉन्शियसनेस। ऐसा भी होता है कि कई बार वी आर जस्ट सिटिंग एंड वी आर जस्ट अजूम्ड आउट, वी आर नॉट इन आवर कॉन्शियसनेस, and while studying or while doing anything we face a lot of problem. We have we face a lot of problem on focus करने में, for attention, for facing noise, और supporters, जो supporters होते हैं, even if you have seen in India Pakistan match, the if India lose, then India, what do they are ready to just destroy the TVs, the televisions. And same for applied for Pakistan. If it you know it अगर वो हार जाती है इंडिया से, then they also do the same kind of behavior, that what made them to do that. So this cannot claim that answer have been found. So this subject doesn't claim that the answer हमें मिल गए हैं इतने complex questions के, but it surely has improved upon our understanding and how वी मेक सेंस ऑफ दीज फिनोमेना। बट हमें इस चीज़ का पता लग गया है कि हम किस तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इन ये जो फिनोमिनन्स हो रहे हैं ये किस तरीके से सेंसिबल है, मतलब हम इनको समझ सकते हैं। द मोर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ द डिसिप्लिन, अनलाइक अदर साइंसेस, लाइज इन द स्टडी ऑफ psychological process which are largely internal and available to humans for observation within themselves. और उससे भी बड़ा डिसिप्लिन, उससे भी बड़ा स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ये है, मतलब और साइंसेस के अलावा ये है कि इसमें इसके खुद की प्रोसेस में इसके जो इंटरनल जो ह्यूमन की अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस हैं वो उसको स्टडी करने में हेल्प करते हैं। So our very first heading, which we will discuss from now, is any knowledge discipline is hard to define. तो कोई भी नॉलेज, कोई भी डिसिप्लिन में हम किसी भी तरीके की नॉलेज की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसको हमें डिफाइन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फर्स्टली बिकॉज इट इवॉल्व्स कंटिन्यूसली, तो उसका पहला रीज़न ये है कि वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है टाइम के साथ। सेकेंडली बिकॉज द रेंज ऑफ फिनोमिना इट स्टडी कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय एनी वन डेफिनेशन। और दूसरी बात ये है कि जो इतने सारे फिनोमिनन्स हो रहे हैं जो हर स्टडी में अलग अलग कैप्चर हो रहे हैं, इनको हम एक डेफिनेशंस पे नहीं एक्सप्रेस कर सकते। दिस इज़ इवन मोर ट्रू ऑफ this subject. Long time back, student like yourself were told that the term psychology is driven from two Greek words. Psyche means soul and logos means science or study of the subject. So this
this psychology can was a study of the soul or mind, but since then it has moved away considerably for this focus and established itself as a scientific discipline which deals with the processes underlying human experience and behavior. तो जैसे हमने अभी थोड़ी लाइनों पहले हमने ये बात की थी, इसमें हमने यही बात की थी कि हम इसको एक डेफिनेशन से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसी का एग्जांपल ये हमारे सामने आ गया कि पहले ऐसा बोला जाता था कि जब हम साइकी की बात कर रहे हैं तो साइकी हम सोल से कनेक्ट कर रहे हैं और लोगस मतलब कि उस स्टडी को पढ़ना होता है, उस टाइम पे था। बट नाउ आज के टाइम पे हम ये बोलते हैं कि ये हम पढ़ रहे हैं जो इट इज़ एन डिसिप्लिन, ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो हम ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को और ह्यूमन्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द सब्जेक्ट कंटेन। सो द रेंज ऑफ फिनोमिनन इन स्टडी सम of which we mentioned above are spread over several levels। तो अभी ये जो हमने कुछ ऊपर हमें जो फिनोमिनन्स दिए हुए हैं, ये कुछ मतलब सेवरल लेवल्स पे ये स्प्रेडेड हैं। एक इंडिविजुअल के डायडिक मतलब कि या फिर 2 इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं या फिर एक ग्रुप के हो सकते हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं। तो ये हम एक एक बहुत लेवल्स पे इसकी स्टडी करते हैं। सो दे ऑल्सो हैव बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल बेसिस। तो इसके बायोलॉजिकल बेसिस भी होते हैं और सोशल बेसिस भी होते हैं। नेचुरली while talking about biological basis, for example, women's have a different kind of psychology, men's have a different kind of psychology, then that is this falls under biological. Now while talking about social, then in what kind of society you are living, that also defines it. So naturally therefore the method required to study them also vary greatly depending on the phenomena one want to study। तो अब ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कोई इंसान क्या पढ़ना चाहता है। अ डिसिप्लिन इज डिफाइन बोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज स्टडीड एंड हाउ इट स्टडीज़। तो एक जब हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो हम उसको दोनों ही टर्म से एक्सप्रेस करते हैं, दोनों ही टर्म से हम उसे बताते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, व्हाट वी हैव स्टडीड एंड हाउ इट स्टडीज़, कि वो किस तरीके से पढ़ा है। सो इनफैक्ट मोर इन टर्म्स ऑफ हाउ और मेथड इट यूजेस, कीपिंग दिस इन व्यू, psychology is defined formally as a science which study mental processes, experiences and behavior in different contexts। तो अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ये सब्जेक्ट है, ये फॉर्मली एक क्या है, ये एक साइंस है जो कि स्टडी करती है मेंटल प्रोसेसेस को, एक्सपीरियंसेस को लोगों के और ग्रुप्स के या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के और उनके बिहेवियर्स को डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में। In doing so, it uses methods of biological and social sciences to obtain data systematically। और इसे करने के लिए इस चीज़ को करने के लिए हमें मेथड्स जो होते हैं बायोलॉजिकल और जो सोशल साइंस से हमें जो डाटा सिस्टमैटिकली ऑब्टेन्ड होता है वो हमें चाहिए होता है इस चीज़ को स्टडी करने के लिए। इट मेक्स सेंस ऑफ दीज डाटा सो दैट दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज नॉलेज। और ये जो डाटा है ये किस तरीके से मतलब ये सेंसिबल इस तरीके से है कि हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड 3 टर्म्स यूज्ड इन द डेफिनेशन, नेमली मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। तो अब हम इन जो ये हमने अभी टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, जिसको हमने मेंटल प्रोसेसेस बोला, एक्सपीरियंस बोला और बिहेवियर बोला, इन तीनों को हम अभी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी से एक्सपीरियंस आर इंटरनल टू द एक्सपीरियंसिंग पर्सन, देन वी रिफर टू स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। तो जब हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस की, किसी के भी इंटरनल एक्सपीरियंसेस की, तो हम इस चीज़ पे रिफ़र कर रहे हैं कि वो इंसान की जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो अवेयरनेस है या जो उसकी मेंटल प्रोसेस है उसके बारे में। वी यूज़ आवर मेंटल प्रोसेसेस व्हेन वी थिंक और ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो जब हम कोई भी मेंटल प्रोसेस जो है, हम जब मेंटल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्या चीज़ ले रहे हैं, हम उसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की।
टू नो और रिमेंबर समथिंग, टू नो और रिमेंबर समथिंग, यानी कि हमने कोई मेंटल मतलब कोई हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, हमने कुछ कुछ हमने याद रखने की कोशिश की, या फिर हमने कुछ जानने की कोशिश की। वन लेवल एट विच दीज मेंटल प्रोसेसेस आर रिफ्लेक्टेड इन द ब्रेन एक्टिविटी। तो हमें देखना है कि ये ब्रेन की एक्टिविटी में किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हुए हैं। As we think or solve a mathematical problem, our brain activity can be observed using different techniques of brain imagining. तो जब हम कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है उनको हम ऑब्जर्व करते हैं एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी से, जिसको हम ब्रेन इमेजिनिंग कहते हैं कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो रही है उस समय पे। हाउएवर, वी कैन नॉट से दैट ब्रेन एक्टिविटीज़ एंड मेंटल प्रोसेसेस आर द सेम थिंग। तो हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है और जो मेंटल प्रोसेस होती है वो दोनों सेम चीज़ें होती हैं। ऑल्दो दे आर इंटरडिपेंडेंट, बट वो दोनों क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मेंटल एक्टिविटीज़ एंड न्यूरल एक्टिविटी आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेसेस, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं और जो न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि जो हमारी न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज़ हैं और जो मेंटली हम जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। अनलाइक the brain, the mind does not have a physical structure or has a location. जैसे ब्रेन है, ब्रेन हमारे मतलब हमारा ब्रेन है हमारा दिमाग, और माइंड है हमारा ध्यान। तो जो माइंड है इट्स नॉट अ फिजिकल स्ट्रक्चर और हैज़ अ लोकेशन। तो ब्रेन की एक प्रॉपर लोकेशन होती है, हमारी क्रेनियल बोन में प्रेजेंट है, हमारे नेक के ऊपर प्रेजेंट है, एक प्रॉपर लोकेशन है। बट माइंड की ऐसी कोई प्रॉपर एक लोकेशन नहीं है, ऐसा कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। Mind emerges and evolve as our interaction and experiences in this world get dynamically organized. तो ये जो माइंड होता है, ये क्या होता है, ये इवॉल्व होते रहता है, ये इमर्ज होते रहता है हमारे इंटरेक्शंस के साथ साथ, हमारे एक्सपीरियंस के साथ साथ, जो कि हमारे इस संसार में होते हैं। Get dynamically organized in the form of system which is responsible for the occurrence of various mental processes. तो ये है डायनामिक ऑर्गेनाइज जो हो रहा है, इसकी जो फॉर्म्स हैं सिस्टम की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं मेंटल प्रोसेसेस के लिए और उसके अकरेंस के लिए। ब्रेन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट क्लूज एज टू हाउ आवर माइंड फंक्शंस। तो ये जो ब्रेन की एक्टिविटी होती हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन हमें ज़रूर प्रोवाइड करती हैं, या इम्पॉर्टेंट क्लूज़ हमें ज़रूर प्रोवाइड करती हैं कि किस तरीके से जो माइंड है वो फंक्शन कर रहा है। बट द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस आर मच मोर देन द न्यूरल और ब्रेन एक्टिविटीज़। लेकिन जो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस हैं, यानी कि हमारे एक्सपीरियंस जो है किसी के साथ, और जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, वो इस न्यूरल एक्टिविटी से कई गुना ज़्यादा है। इवन व्हेन वी आर अस्लीप सम मेंटल एक्टिविटी गो ऑन। जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारी कुछ मेंटल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। वी ड्रीम एंड रिसीव सम इंफॉर्मेशन सच एज नॉक ऑन द डोर वाइल वी आर अस्लीप। तो हमें जैसे कि हमें सपने आ रहे हैं, इट इज़ एन मेंटल एक्टिविटी। और we receive information. For example, I am sleeping in a room and the door knocks. Then I, somehow I felt like the door was knocked. So it is a consciousness which I can felt while I sleeping. So some psychologists have shown that we also learn and remember in our sleep. तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दिखाया है कि हम जब सो रहे होते हैं तब भी हम कुछ चीज़ याद कर रहे होते हैं, और कुछ चीज़ हम क्या कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं।
So mental processes such as remembering, learning, knowledge, perceiving, feeling are of interest to psychologist. तो ये जो mental processes होती हैं, जैसे कि किसी चीज़ को remember, किसी चीज़ को याद रखना, किसी चीज़ को लर्न करना, किसी कोई नॉलेज को या फिर कोई परसीव करना किसी चीज़ को, और ये जो फीलिंग होता है इंटरेस्ट का, ये मतलब ये एक इंटरेस्ट का फील है साइकोलॉजिस्ट के लिए. सो दे स्टडी these processes to try to understand how the mind works and to help us improve the uses and application of these mental capacities. तो अब इस तरीके से जो हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो हमें अब हमारी जो माइंड के काम करना है, माइंड को इम्प्रूव करना है, उस और उसकी जो मेंटल एप्लीकेशंस हैं, उसकी कैपेसिटीज़ हैं, जैसे कि एक जगह पे कंसंट्रेट करना, ध्यान केंद्रित करना, ये सारी चीज़ों को किस तरीके से हम खुद के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. एंड साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडी एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल. तो हमारा ये काम भी होता है कि हम लोगों के एक्सपीरियंसेस को क्या करें, स्टडी करें. एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर. तो जब हम एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं नेचर पे, यानी कि इसमें बहुत स्टडी करने की ज़रूरत है. वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो समवन एल्स एक्सपीरियंस. हम किसी के को देख के इस तरीके से उसके एक्सपीरियंसेस को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते या फिर नहीं जान सकते. Only the experiencing person can be aware or be conscious of her or his experience. सिर्फ वो इंसान जो कि जिसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, वो उसने अपने अवेयरनेस पे एक्सपीरियंस किया, उसने अपने कॉन्शियसनेस पे एक्सपीरियंस किया, तो वो एक्सपीरियंस सिर्फ उस पर्सन का खुद का है. दस द एक्सपीरियंस आर एम्बेडेड इन आर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस. तो ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये अब एम्बेडेड होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल धसे हुए होते हैं हमारी अवेयरनेस में और हमारी कॉन्शियसनेस में. साइकोलॉजिस्ट हैव फोकस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ पेन बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय टर्मिनली इल पेशेंट or of psychological pain felt in bereavement, beside experiencing which led to positive feeling such as in romantic encounters. तो अब जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं, ये एक्सपीरियंसेस पे फोकस करते हैं. जो पेन जो होता है, जो एक्सपीरियंस हमें पेन मतलब जब हम टर्मिनली जब हम इल पेशेंट जो होते हैं, तो साइकोलॉजिकल पेन उन्हें फील किया हुआ होता है, उसको किस तरीके से जो उनकी जो उनकी मतलब साइकोलॉजिकल पेन उन्हें किस तरीके से फील होता है डिस्पाइट उनके इतने सारे पॉजिटिव फीलिंग्स हैं या फिर इतने रोमांटिक एनकाउंटर्स हैं. सो देयर आर सम एजोटेरिक एक्सपीरियंसेस ऑल्सो विच अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट. तो ऐसे भी बहुत सारे एजोटेरिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपना अटेंशन हमें अट्रैक्ट करता है. सच एज व्हेन अ योगी मेडिटेट्स टू एंटर अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. किस तरीके से एक जो योगी होता है, जब वो मेडिटेट करता है, जब वो मेडिटेशन करता है, तो किस तरीके से एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है एंड क्रिएट्स अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. और व्हेन अ ड्रग एडिक्ट टेक्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रग टू गेट हाई, इवन दो सच ड्रग्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल. तो अब जब एक ड्रग एडिक्ट कोई ड्रग ले रहा है और उसको लेके वो हाई मतलब उसको लेके वो नशे में जा रहा है, तो वो उस नशे में जाके किस तरीके का अलग लेवल का जो कॉन्शियसनेस वो क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, ये जानते हुए कि वो ड्रग क्या है, बहुत ज़्यादा उसके लिए हार्मफुल है. एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द एक्सपीरियंसर. तो अब ये जो एक्सपीरियंस है, ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है, ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इंटरनल यानी हमारे अंदर के, और जो हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं. एक जो एक्सपीरियंस लेने वाला इंसान है, उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन से क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही हैं. If you are traveling in a crowded bus during a hot summer day, अगर तुम्हें बहुत तुम ट्रैवल कर रहे हो बहुत क्राउडेड बस में और बहुत गर्मी का दिन है,
You may not experience the usual discomfort if you are going for a picnic with some close friends. तो आपको ना इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता, इतना ज़्यादा कुछ फ़ील नहीं होता इफ़ यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड गोइंग फॉर हैविंग फन फॉर मूवी और फॉर एनीथिंग फॉर पिकनिक, as मैं एग्जाम्पल दिया है. Thus, the nature of experience can only be understood by analyzing a complex set of internal and external conditions. तो ये जो नेचर होता है एक्सपीरियंस का, इसको हम समझ सकते हैं, हाँ, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं. अब ये एक डिपेंड करता है, ये एनालिसिस किस चीज़ पे होता है, ये होता है इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस पे. देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ बिहेवियर्स. बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज़ वी इंगेज इन. अब जो बिहेवियर होता है किसी का, वो किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन होता है उन एक्टिविटीज़ का या फिर उन रिस्पॉन्सेस का. मतलब उन बेसिकली ये एक रिस्पॉन्स है जो कि हमें मिलता है हम जिस एक्टिविटी को करते हैं उससे. देन व्हेन समथिंग इज हर्ल्ड एट यू, योर आइज ब्लिंक इन अ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन. कोई चीज़ तुम्हारे ऊपर फेंकी जाती है, कुछ चीज़ अगर सडनली तुम्हारे ऊपर आई, तो तुम क्या करते हो, तुम्हारे रिफ्लेक्स एक्शन में तो हमारी आंखें क्या होती हैं, ब्लिंक होती हैं, है ना. यू आर टेकिंग एन एग्जामिनेशन एंड कैन फील योर हार्ट पॉन्डिंग. तो अब अगर आपका कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो क्या होता है, ऐसे धक धक वाली फीलिंग आती है. यू डिसाइड टू गो फॉर अ पर्टिकुलर मूवी विद अ फ्रेंड. जब आपने डिसाइड किया कि आप एक पर्टिकुलर मूवी में जाओगे अपने फ्रेंड के साथ. बिहेवियर्स में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट और इंड्यूरिंग. तो अब ये जो बिहेवियर्स हैं ये क्या हैं, सिंपल हैं, समटाइम्स इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, समटाइम्स इट कैन बी शॉर्ट, मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकते हैं, और कभी कई बार ये बहुत लंबे टाइम के लिए भी हो सकते हैं. सम बिहेवियर्स आर ओवर्ट, दे कैन बी आउटवर्ड सीन और सेंस्ड बाय ऑब्जर्वर. तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो हम बाहर से देख सकते हैं और उन्हें सेंस कर सकते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं. सम आर इंटरनल और कोवर्ट, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंटरनल होते हैं या कोवर्ट होते हैं. When you are in a difficult situation while playing a game of chess, you almost feel your hand muscle uh, twitching, trying to experiment with a move. तो जब आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं चेस खेल रहे हैं, तो हम अगर चेस में हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहुंच गए तो हम अपनी उंगलियों को क्या करते हैं, ऐसे मसल्स को स्ट्रेच करने लगते हैं, और अगला जो है मूव उसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. तो ऑल बिहेवियर्स कन्वर्ट और ओवर्ट, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल, आर एसोसिएटेड विद और इंटीग्रेटेड बाय सम स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट और चेंज दैट हैपन्स इंटरनली. तो अब ये जो हमारे बिहेवियर हैं, जो हमारा इंटरनल बिहेवियर है, जो या हमारा आउटवर्ड बिहेवियर है, ये इस चीज़ से एसोसिएटेड होता है कि हम किस स्टिमुलाई से हम ट्रिगर हुए हैं, और वो जो चीज़ है वो हमारे सराउंडिंग में जो है हो रही है, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज में हो रही है. यू सी अ ट्रिगर एंड रन और थिंक दैट देयर इज़ अ ट्राइगर एंड डिसाइड टू फ्लाई. जब आपने एक टाइगर को देखा, सॉरी आई हैव मिस प्रोनाउंस्ड इट, इट इज़ टाइगर. जब हमने एक टाइगर को देखा तो हम क्या किया, हमने देखा उसे और हम भागने लगे, या फिर हमने ये सोचा कि हम भाग जाएंगे, या फिर हम भाग गए. तो सम psychologists study behavior as an association between stimuli and responses. तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि ये जो बिहेवियर होता है ये एसोसिएटेड होता है स्टिमुलाई से, जो हमें बाहर से स्टिमुलाई मिल रही है वो, एंड रिस्पॉन्स, और क्या है, रिस्पॉन्स, जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं. सो बोथ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कैन बी इंटरनल एंड और एक्सटर्नल. तो ये जो स्टिमुलस हमें मिलता है ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, ये इंटरनल भी हो सकता है. साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. तो अब जब हम इसे एक डिसिप्लिन की तरह से पढ़ रहे हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड अबव, साइकोलॉजी स्टडी
स्टडीज़ बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि ये 3 चीज़ों के पीछे अराउंड रिवॉल्व करता है, हमारा बिहेवियर, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी मेंटल प्रोसेसेस। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ द माइंड वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस रिजल्ट इन डिफरेंट बिहेवियर्स। तो हम ये चीज़ समझते हैं या हम ये चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से जो माइंड है वो काम कर रहा है और किस तरीके से जो डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस हो रही हैं वो किस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स को रिजल्ट कर रही हैं। सो व्हेन वी ऑब्जर्व अदर एज अ ले और कॉमन पर्सन्स, our own points of view or our ways of understanding the world influence our interpretation of their behavior and experiences। तो जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कॉमन पर्सन्स को, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू या हमारी जो समझने की हम किस तरीके से समझ रहे हैं चीज़ों को, वो क्या करता है, वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है। हम अपने तरीके से इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, हम अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन लगा लेते हैं उनके बिहेवियर की, उनके एक्सपीरियंसेस की। साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू मिनिमाइज सच बायसेस इन देयर एक्सप्लेनेशंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस इन वेरियस वेज। तो अब ये यहाँ पे जो है साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को मिनिमाइज कर रहे हैं कि जो उनके खुद के एक्सपीरियंस है वो उसके बेसिस पे क्या है, दूसरों के एक्सपीरियंस को ना वो करें, पढ़ें। आइदर वो क्या करेंगे, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उनके जो बिहेवियर का और जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे तरीके से क्या होंगे, एक्सप्लेन होंगे। सम डू सो बाय सीकिंग टू मेक देयर एनालिसिस साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। तो कुछ ऐसा करते हैं क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए उनके जो साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अदर सीक्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्सपीरियंसिंग पर्सन बिकॉज दे थिंक दैट subjectivity is a necessary aspect of human experience। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बिहेवियर को, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं दूसरे लोगों को, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये बहुत सब्जेक्टिव है और ये नेसेसरी है ह्यूमंस की एक्सपीरियंस को, उनके एक्सपेक्ट्स को पढ़ना। इन द इंडियन ट्रेडिशन, इंडिया के ट्रेडिशन में सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ आर conscious experiences helped to be a major source of psychological understanding। तो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से जो हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन है, हम किस तरीके से खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं, या जो हमारी एनालिसिस होती हैं, जो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की होती है, ये एक मेजर सोर्स होता है हमारी साइकोलॉजी को समझने का। इंडिया के लिए है ये। And many Western psychologists have also begun to emphasize the role of self-reflection and self-knowledge in understanding human behavior and experiences। अब बहुत सारे जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी ये चीज़ शुरू कर दी है, ये चीज़ एम्फोसाइज करनी कि जो उनके खुद के सेल्फ रोल हैं या फिर सेल्फ जो उनके रिफ्लेक्शंस हैं, सेल्फ नॉलेज है, उससे वो अप्लाई करने लग गए हैं ह्यूमन के बिहेवियर को समझने के लिए और उनके एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए। रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस इन द वे साइकोलॉजिस्ट गो अबाउट द स्टडी ऑफ बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंसेस, they study to understand and explain them in a systematic and verifiable manner। तो इस चीज़ के रिगार्डलेस, मतलब इस चीज़ के अलावा कि जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग अलग तरीके से, यानी उनके अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं बिहेवियर को पढ़ने के लिए, मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ने के लिए, एक्सपीरियंसेस को पढ़ने के लिए। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एक्सप्लेन करते हैं हम एक सिस्टमैटिक और वेरी वेरी वेरीफाइबल मैनर में। इन साइकोलॉजी दो इट इज़ अ वेरी ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन इज़ अ यंग साइंस। तो ये जो साइकोलॉजी एक बहुत ओल्ड नॉलेज, एक बहुत ओल्ड डिसिप्लिन है, लेकिन ये क्या है, बहुत नई साइंस है। If one were to take the year of founding of the first laboratory of psychology in 1879 in Leipzig,
तो जो पहला अगर कोई जानना चाहता है कि कहाँ पे फर्स्ट हुई, तो 1879 में हुई थी पहली, लाइप्जिग नाम की जगह पे पहली लैब जो थी वो फाउंड हुई थी। However, what kind of science is psychology still remain a matter of debate। तो लेकिन ये एक अभी भी डिबेटिंग मटेरियल है कि किस तरीके की साइंस है ये, particularly because of the new interfaces that have emerged in recent time। हाँ, क्योंकि बहुत सारे नए-नए इंटरफेसेस जो हैं वो आज के टाइम पे क्या हुए हैं, इमर्ज हुए हैं। साइकोलॉजी इज़ जनरली कैरेक्टराइज्ड एज़ सोशल साइंस। तो इसको बेसिकली हम एक सोशल साइंस की कैटेगरी में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। बट इट शुड नॉट कम टू अस एज अ सरप्राइज दैट नॉट ओनली इन अदर कंट्रीज बट in India also it is also a subject of study offered in the faculty of science। तो लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया ऐसा होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये एक साइंस की फैकल्टी की तरीके से भी क्या है ऑफर किया जाता है, बोथ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। Many students go to earn BSc or MSc degree in universities. In fact, two of the most sought after emerging discipline which continues borrowing from psychology are neuroscience and computer science। तो अब इसके बाद जो दो कंटिन्यूस एक डिसिप्लिन्स हैं जो हम इमर्ज करेंगे साइकोलॉजी में, वो क्या है, न्यूरो साइंस है, कंप्यूटर साइंस है। Some of us would be aware of the fast developing brain imaging techniques like MRI, EEG, etc। तो ये जो सारी इमेजेस हैं ये हमारी ब्रेन की इमेजेस होती हैं, MRI, EEG। तो ये क्या होती हैं, ये इमेजिंग टेक्निक्स हैं विच मेक इट पॉसिबल टू स्टडी ब्रेन प्रोसेसेस इन रियल टाइम। तो रियल टाइम में उस दिमाग में क्या चल रहा है वो हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं when they are actually taking place। यानी कि जब उस टाइम पे वो प्रोसेस हो रही है, हम कि दिमाग में फिजिकली क्या चल रहा है ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। Similarly, in IT areas, both human-computer interaction and artificial intelligence cannot possibly grow without psychological knowledge and cognitive processes। तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल नॉलेज हमें चाहिए होती है। द साइकोलॉजी इज़ एज अ डिसिप्लिन टुडे हैज़ टू पैरेलल स्ट्रीम्स। तो अभी इसकी क्या है, दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं। वन विच मेक्स यूज़ ऑफ मेथड इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस। एक चीज़ जो कि इसकी फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस में क्या है, जा रही है। एंड द अदर विच मेक्स यूज ऑफ मेथड्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल साइंस इन स्टडिंग वेरियस साइकोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना। इसके अलावा जो दूसरा है वो ये है कि ये जो मेथड्स हैं सोशल और कल्चरल साइंस के, जो हम स्टडी करते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिकल और सोशल फिनोमेनास में, वो सो दीज स्ट्रीम्स समटाइम्स converge only to drift apart and go their separate ways। तो अब ये जो दो स्ट्रीम्स हैं फिर ये क्या होती हैं, ये अपनी अपनी डिपार्टमेंट में चली जाती हैं, अलग हो जाती हैं। इन द फर्स्ट केस साइकोलॉजी कंसिडर सेल्फ एज अ डिसिप्लिन विच फोकसेस लार्जली ऑन बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। जो पहला केस है जहाँ पे हम इसको एज अ ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं और इसके जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं हम वो पढ़ रहे हैं। इट अज्यूम्स दैट ऑल behavioral phenomena have cause which can be discovered if we can collect data systematically under controlled conditions। तो ये अज्यूम किया जाता है कि जो बिहेवियरल फिनोमिनन है इनको हम क्या कर सकते हैं, हम उनको डिस्कवर कर सकते हैं अगर हमारे पास डाटा क्या है, कलेक्ट है सिस्टमेटिकली, और वो क्या है, कंट्रोल में है। सो हेयर द एम ऑफ द रिसर्चर्स इज टू नो द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सो दैट a prediction of the behavioral phenomenon can be made and behavior can be controlled if needed be। तो इस तरीके से जो एम है रिसर्चर्स का, इस तरीके से जो रिलेशनशिप का प्रिडिक्शन है बिहेवियर के फिनोमिनास का, उनका इफ़ेक्ट, उससे और हम जो बिहेवियर है उसको अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे ही टाइम पे जो एज अ सोशल साइंस जो ये सब्जेक्ट है वो ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस करता है, वो इस चीज़ पे फोकस करता है कि जो बिहेवियर है
कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शंस दैट टेक्स प्लेस। ये जिस जो इंटरेक्शंस होते हैं, उन जो इंटरेक्शंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे, और जो सोशियो कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसका एक पार्ट है। सो ईच बिहेवियर फिनोमिना इज अज्यूम टू हैव मल्टीपल कॉजेस। तो एक जो बिहेवियरल फिनोमिना है, उसके पीछे होने के पीछे बहुत सारे क्या हैं, मल्टीपल कॉज हो सकते हैं। सो लेट अस नाउ डिस्कस दीज टू स्ट्रीम्स सेपरेटली। तो अब हम इन दोनों स्ट्रीम्स को अलग अलग सेपरेटली क्या करते हैं, पढ़ते हैं। साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। तो पहला है इसमें कि साइकोलॉजी क्या है, एक नेचुरल साइंस की तरीके से कैसे है।